करो. Salaries are expense. 29th problem. Salaries are expense. Printing and stationery expense. Taxes and insurance are expense. Subscription to newspaper are expense. Repairs and renewals are expense. Sports equipment. What are sports equipment? Assets. Always assets. Equipments, instruments. Purchased on 11006. Fixed deposit with central bank. That is also asset. Closing balances. Current year's closing balance. Asset. Then opening balance is last year's asset. A subscription received is income. एक ही दिया है. Hall rent received is income. Interest received is income. Sale of old newspaper is income. Donations के बारे में पढ़ो. कुछ दिया है क्या? Donations के बारे में. Yeah, last Building fund. donation have been collected for constructing a building and therefore have to shown under building fund account. Can you all see that? The donations are endowment fund ka donation basically, so you put it under liabilities separately under the head of building fund. Coming to the last year assets, last year's balance sheet. Building last year asset, current year asset, fixed asset है. Furniture last year ka closing, this year ka opening, bring it down. Books last year ka closing, this year ka opening, get it to the current year. Sports equipment same, last year asset and current year asset, bring it to the current year asset. Fixed with SBI is fixed deposit with SBI. Fixed deposit with State Bank of India, that is also last year asset and bring it to this year asset. Interest accrued on investments. Interest accrued, कौन सा interest accrued है ये? Last year का outstanding interest हुआ. क्या करोगे इसको? Last year के outstanding interest less from interest and assets of last year. Less from interest and last year. Understood? Okay. Then we have subscription receivable again. Less from subscription and assets of last year. Last year का receivable है. Less करना है पक्का? हाँ. करना है? Yes. Included है. Year wise नहीं दिया है. Total है तो सब कुछ मिलावट है उसके अंदर. Cash to subscription common entry मारा है. तो last year next year का सब adjustments करना है. Cash in and cash at bank are assets. Capital fund. Can you tell me what is the closing capital of last year actually? 61,520. 61,520 or 58,520? 61,520. So what is 58,520? Last to last year का था. उसमें तुमने last year का surplus add किया तो बन गया 61,520. तो अपना closing capital fund is 61,520. Got it? Keep that in mind. Subscription received in advance. Subscription received in advance, that is previous year. Last year का pre-received है. तो क्या करने का? Add to income and liabilities of last year. Okay? Add करना पड़ेगा क्योंकि पैसे last year आ गए थे. Income belongs to this year, right? Okay. Then let's go to the current year's adjustment. Current year में क्या दिया है? During the year, subscriptions for the year 2007-8. 7-8 is current year. No, sorry. 6-7 is current year. Okay. Your subscription for the year 7-8 received during the year are 500. What is this? What is this? Three received of this year. Less. So what are we supposed to do? Less from subscription and liability. Less करना है पक्का? हाँ. Yes करना है. क्यों less करना है? Because included है. Yes, इसके अंदर है. अलग-अलग नहीं दिया है guys. The society consists of 500 members and annual subscription payable by each member is ₹12. अब इसका मतलब क्या हुआ? Outer column में. ये outer column में दिखना चाहिए. ये outer column में दिखना चाहिए. तो अभी आपको outstanding subscription नहीं दिया है, but कुछ hint दिया है उसका. तो suppose ये मेरा income and expenditure account है. तो इसमें on the income side, how will I present my subscription? My subscription will be by subscription. जो receive किया है मैंने, कितना receive किया है? 6080. 6080. ये तो मिलावटी है. लेकिन outer column में कितना होना चाहिए? 6,000. Outer column में 6,000 होना चाहिए. तो क्या 80 pre received है? नहीं. Then how should I find out? सब adjustment करना. बाकी सब adjustments करना पड़ेगा. Yes, there were other 3 adjustments on subscription. So finish off those first. Like there was receivable of last year. Can you all see that?
रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर था, कितना था रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर? 1000 माइनस करूंगा, इसके अंदर पड़ा था लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ लास्ट ईयर 1000. ओके, so I arrive at 5080, राइट? 5080. उसके बाद प्री रिसीव्ड भी था लास्ट ईयर का, मतलब पैसे लास्ट आ गए थे, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. So I shall add that outstanding, add that pre-received subscription of last year. Pre-received subscription of last year was 400. Last year का liability. तो ये बना 5480. और एक एडजस्टमेंट है, करंट ईयर प्री इन एडवांस ऑफ दिस ईयर 500 रुपया. नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया ना, वो भी ये साल के इनकम को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन अंदर पड़ा हुआ है तो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर करंट ईयर, तो ये माइनस करने के बाद आई अराइव एट 4950. आई अराइव एट 4980, सॉरी 4980. लेकिन आउटर कॉलम कितना है? 6000 होना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन जो है वही आपका अर्न इनकम है, और अक्रूवल के हिसाब से आपको अर्न इनकम दिखानी है इस साल. अग्री? तो व्हाट इज दिस नाउ? व्हाट इज दिस बैलेंसिंग? रिसीवेबल 10 करंट ईयर का रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग 1020. 020 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये समझ आया सबको? ऑल ऑफ यू? पक्का? एनी डाउट? दोनों में से एक चीज होगा, या तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे देंगे या मेंबर सब्सक्रिप्शन दे देंगे, तो अर्नड इनकम आ गई आपके. आउटर कॉलम की इनकम आपको पता है, तो डिफरेंस इज अर्नड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ दिस ईयर. ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द रेंट for the society's hall is 250 per day and the hall was let out on hire 8 days in a year. शादी फंक्शन के लिए 8 दिन के लिए लेट आउट किया था भाड़े पर, तो 250 into 8 कितना होता है? 2000 होता है. whereas कितना रिसीव्ड है इनकम? 1750. So that indicates 250 rupees is what? Outstanding rent of this year. Perfect. Outstanding rent of this year. All of you got that? बढ़िया. Then this one is important. Interest accrued on fixed deposits with bank has to be provided at 6% per annum. FD पे 6% interest provide करना है. Is it normal or hidden adjustment? Hidden. Hidden. Percentage देके छोड़ दिया ऐसे. कितना महीने का आउटस्टैंडिंग है, कुछ बोला नहीं अपने को, तो हिडन है. पहले तो बताओ कितने FD है हमारे पास? Many FDs do we have? 2 FDs we have. एक तो FD with SBI है जो ऊपर से टपक रहा है लास्ट ईयर से. FD with SBI है 30,000. Can you see that? और दूसरा है FD with CBI, Central Bank. FD with Central Bank of India, that is 5,000. But this FD has been taken on 11006. ये FD 11006 को बनाएंगे. So let's calculate the interest. Calculation of interest अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, कमाई हुई इनकम दिखा लेते हैं जितना हमको आउटर कॉलम में होना चाहिए, दिखना चाहिए. Calculation of interest. Interest on FD with SBI कितना होना चाहिए? Interest on FD with SBI 1800. 1800. should be 30,000 पे 6% for full year, right? 1800. What about interest on FD with CBI? 150. 5,000 पे 6 for 6 months, right? So that is one. So what's your total earned interest of this year? कितना कमा लिया तुमने interest? 1950. This is total interest earned on both the FDs. दोनों पे FD पे साथ में दे दिया 6%. Now let's see, let's check, have you received any interest? Check, have you received it? Let's check, have you received any? Yes. 100. 1200. 1200. So can I say 750 is outstanding? और सर लास्ट ईयर का Last भी year का भी आउटस्टैंडिंग है था. ना सर? लास्ट ईयर का भी था, लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग था. कितना था? सर इसमें इन्वेस्टमेंट FD सबका इसमें ही करना है इफेक्ट. कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट दिया है? हाँ वही नहीं इंटरेस्ट कोई दूसरा नहीं है तो सबका इसमें ही ना. एक ही इन्वेस्टमेंट है FD और एक ही इंटरेस्ट है, तो उसी को बिलोंग करेगा. ओके, तो एक ही इन्वेस्टमेंट है, एक ही इंटरेस्ट है, तो उसी को करेगा. 2-3 है तो दे शुड स्पेसिफाई द नेम वाइज. ओके, एंड दे विल स्पेसिफाई, डोंट वरी अबाउट दैट. So
रिसीव्ड इंटरेस्ट वैसे तो 1200 है, बट 1200 में अपने को लास्ट ईयर का मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है? 100. 200. वो इसके अंदर पड़ा होगा ना 1200 के अंदर, कुछ नहीं दिया तो साइकिल ऑफ इनकम गोज लाइक दैट, पहले लास्ट ईयर का रिसीव करते हो फिर करंट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर। तो 1200 में 200 तो लास्ट ईयर का है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर इज हाउ मच? ओनली 1000. तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ दिस ईयर? 950. देखो आपने जैसे सब्सक्रिप्शन किया ना, ये आप इंटरेस्ट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन आपने कैसे दिखाया, जो मेंबर का सब्सक्रिप्शन था वो आउटर कॉलम में दिखा दिया ना, वैसे ही आप इंटरेस्ट के केस में क्या कर सकते हो, ये जो अर्नड इंटरेस्ट है ना, अर्नड, ये जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है, ये आप सीधे आउटर कॉलम में दिखा सकते हो। तो मेरा अर्न, मेरा कमाया हुआ इंटरेस्ट शुड बी 1950, मेरा कमाया हुआ इंटरेस्ट शुड बी 1950। ओके, हमेशा कोई भी एडजस्टमेंट में आप चेक कर लो, ये हमेशा कमाया हुआ अर्न इनकम बाहर दिखेगा। ओके, रिसीवेबल है तो हम ऐड करके दिखाते हैं, प्री रिसीव है तो हम लेस करके दिखाते हैं, लेकिन दिखता हमेशा कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि कमाया इतना ही है, काम टाइम इतना ही बीता है, ये हमने जेन्युइनली अर्न किया है 12 महीने या 6 महीने जो भी किया। अब रिसीव किया 1200, लेकिन 1200 में आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, कितना था लास्ट ईयर का? 200 रुपया, वो मिला रहेगा, तो 1000 ही मिला है इस साल का, तो ये क्या रहेगा? दिस डिफरेंस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ दिस ईयर, जो अपने को यहाँ पे मिला 950। Sir, how do we divide them among the two FD? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है ना 1200, डोंट हैव एनीथिंग, तो साथ में बताने था। हमने याद है फाइनल अकाउंट्स में भी एक बार एक सम में किया था, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड डिपॉजिट्स साथ में ले लिया था। तो यहाँ पे दोनों एफडी का साथ में है, देखो ना मैंने कैलकुलेट भी साथ ही में किया। यू डोंट नो द ब्रेकअप, सो शो इट्स टुगेदर, दोनों साथ। तो इन योर एसेट साइड, ऑन योर साइड, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू एफडी, यू कैन शो द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सेपरेट। ओके, ऐड करना है तो तीनों फिर ऐड करके, एफडी विद एसबीआई, एफडी विद सीबीआई, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर आउटर कॉलम, ऐसे भी दिखा दो, तीनों ऐड करके दिखाना, या फिर तीनों सेपरेट। ओके, ये वाला क्लियर है दोनों, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट? एनी डाउट्स? बढ़िया है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये इंटरेस्ट में सपोज लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड होता, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड होता, ऐड वो भी ऐड करो, लेकिन आउटर कॉलम में तो यही मिलने वाला है आपको 1950, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ओके, तो उसके हिसाब से आप लोग बाहर में बैलेंसिंग करंट ईयर आउटस्टैंडिंग थोड़ा कम हो जाएगा आपका। ओके, तो ये याद रखना। देन इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स एट 10%, अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स। ओके, डेप्री फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है, पता है अपने को, तो कौन से एसेट पे करना है? बिल्डिंग पे करना है 10%, और किस पे करना है? furniture books are also fixed assets and sports equipment. और कुछ है? नहीं। So 4 fixed assets you need to depreciate by 10% each: building, furniture, books and sports equipment. And donations have been collected for the building fund and credited to building fund. Sorted है? Building fund में दिखाना है donations. Okay? चलो start फटाफट, 10 minutes find out. Only income and expenditure and this year's balance sheet. Doubt है तो बोलो, otherwise start. सर Yes. ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है, उस पे भी 6 मंथ्स का डेप्री आएगा? Yes, डेट दिया है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। हाँ, हाँ, सेल नहीं सर ये है। एसबीआई के एफडी में ही सीबीआई का ऐड करना है? हाँ बोला ना, ऐड करना तो तीनों ऐड करना, एफडी ऑफ सीबीआई, एफडी ऑफ एसबीआई करंट ईयर में। लास्ट ईयर में तो खाली एसबीआई आएगा, करंट ईयर में एसबीआई, फिर ऐड सीबीआई, ऐड रिसीवेबल इंटरेस्ट और आउट ऑफ। अलग अलग भी दिखा, अलग अलग तो तीनों अलग अलग। एफडी को एफडी ऐड करके भी वो इंटरेस्ट अलग से दिखाना है, वैसे भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐड का टेंशन मत लो, इफ यू ऐड एन आइटम और पुट सेपरेटली ऑन द बैलेंस शीट पार्ट, इट इज ओके, इवन इन फाइनल अकाउंट्स, इवन ओवर। कौन पूछ रहा था बीच में अभी? हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2000 रुपीज ओपनिंग है, एडिशन हुआ है उस पे 1000, और डेप्रिशिएट करना आई थिंक 10%। तो ओरिजिनल वाले पे फुल ईयर और एडिशन वाले पे हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 6 months। 110 को है 1 अक्टूबर, राइट? डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट याद रखना, ओरिजिनल वाले पे फुल ईयर, एडिशन वाले पे इट इज 6 months। यस
वो जो डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, पर बिल्डिंग फंड दिया हुआ नहीं। तो इस साल क्रिएट करो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसी साल फर्स्ट ईयर है तो डायरेक्टली लायबिलिटी में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, और यू कैन डायरेक्टली शो बिल्डिंग फंड ब्रैकेट में नीचे डोनेशन एंड आउटर कॉलम इट इज बेसिकली बिल्डिंग फंड नाउ specific donation. Okay, specific purpose endowment fund cannot be used for any other purpose. में मेन था तुम्हारा सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट और सब्सक्रिप्शन, वो बैठ गया दिमाग में तो बढ़िया। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हर बार एक्सपेंडिचर में ही जाएगा।
हाँ चेक कर लो। सरप्लस आ रहा है। टोटल टोटल क्या आ रहा टोटल 10110 है प्लस 2885। सर सेल ऑफ न्यूज़पेपर रिकॉर्ड नहीं किया आपने शायद। वो रह गया 160 सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सरप्लस ऐड करो इसमें। 64405. 64405 टैलीज ऑन 68085। चेक करो। नहीं सर, लायबिलिटी में ज्यादा 3700 68105 आ रहा है लाइव। हाँ, और ये साइड 105 दोनों साइड से नहीं आएगा। नहीं, 20 का डिफरेंस आ रहा है। का डिफरेंस है। अरे हाँ बराबर 20 का करेक्शन है। वो ऊपर वाला जो बैलेंस शीट है ना उसमें लफड़ा है। टोटल टैली नहीं हो रहा है। वो 61520 नहीं है, 61500 है। देखो ऊपर का टोटल है ना, मैच नहीं हो रहा है। 20 रुपया उधर ही गड़बड़। 58500 प्लस 3000 61500, वो 20 नहीं है। 58500 प्लस 3000 61500 है। कैपिटल फंड इज 61500। ऊपर के टोटल में 20 रुपए का गड़बड़ है। तो ये कितना आ रहा है अभी? 63 हो जाएगा। 64385. 64385 आएगा। 64385 एंड टैलीज ऑन 68085। 68085 पे हो रहा है टैली। हाँ, एसेट वही आना था, लायबिलिटी 20 जाना। हाँ सर लाइबिलिटी भी वही यार। अब भी आएगा। 20 रुपीज का क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर। 61500 61500 प्लस 400, ऊपर वाला 61900 है बैलेंस। सर इनकम एक्सपेंडिचर दिखाओ। कुछ नया करेंगे हम लोग, नया करेंगे सम नंबर 25 पे आ जाना। सम नंबर 25 कर लो आराम से, देख लो पहले। 25 पे जाते हैं। विधि की बहन आई थी लेक्चर में, मेरे को विधि लगी तो वापस विधि अटेंड करने लग गई। डिट्टो शी लुक्स लाइक इट। सम नंबर कौन सा बोला? 25 25 जम रहा है अभी। एनपीओ ग्रिप आ रही है, ये सब में पता चलेगा ग्रिप कितनी टाइट है एनपीओ की। ये टाइप का आएगा आपको। हर्ष राजे क्लियर एनपीओ? तो तोड़फोड़ करना टेस्ट में। हर्ष राजे और तनय सावन तोड़फोड़। ओके 90% प्लस चाहिए एनपीओ में।
Come on, it's all about practice. थोड़ा प्रैक्टिस करो, 4-5 सम एक्स्ट्रा करो, बस अपने आप आ जाएगा। सर बैलेंस शीट पर जूम करो ना। सर हो गया। चलो हो गया सबका, करें आगे 20। सम में रिसिप्ट पेमेंट बनाना है ना? हाँ, रिसीट पेमेंट करा, उल्टा गाड़ी पकड़ना है, उल्टा। देखो, एक तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप रिसीट पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो एक्सपेंस में, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करते हो, करंट ईयर प्रीपेड माइनस करते हो, लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड करते हो, है क्या नहीं? तो अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बनाना है तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टा। उल्टी हो जाएंगी। समझ में आया? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉर्मली वी ऐड, लेकिन आप इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, लेस। वैसे ही लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉर्मली आप माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड। करंट ईयर प्रीपेड नॉर्मली माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। और लास्ट ईयर प्रीपेड नॉर्मली क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। पेमेंट का लॉजिक देखना है, रिसीट ऑफ पेमेंट। सेम गोज फॉर इनकम साइड, ओके। करंट ईयर रिसीवेबल नॉर्मली भी ऐड, लेकिन जब रिसीट पेमेंट बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर से तो उल्टा जा रहे हैं तो माइनस, ओके। करंट ईयर रिसीव इन एडवांस नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट, उल्टे जा रहे हो तो प्लस। लास्ट ईयर प्री रिसीव नॉर्मली भी ऐड, उल्टे जा रहे हो तो माइनस। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट, तो उल्टे जा रहे हो तो प्लस। दैट क्लियर? ये उल्टा फंडा समझा? अभी आपको इनर कॉलम का टॉप, आप इनर कॉलम के टॉप से आउटर कॉलम पे जाते हो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, वो आउटर कॉलम आपको दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना के दे दिया है, अभी आपको उल्टा जाके रिसीट पेमेंट बनाना है। बढ़िया, करें स्टार्ट। दिमाग वाला सम, ऐसा सम ही आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इधर हार्ड एंड फास्ट मेथड रूल जैसा कुछ नहीं, प्योरली लॉजिक का एप्लीकेशन। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टर्म्स, यू हैव टू सी द एडजस्टमेंट्स एंड अराइव एट अ कंक्लूजन, कैसे बनेगा रिसीट एंड पेमेंट। तो ड्रॉ कर लो और साथ में स्टार्ट करो। नंबर 25 रिसीट एंड पेमेंट का। इतने सारे समय क्वेश्चन में देखा हुआ है, अभी क्वेश्चन ही पूछ लिया, क्वेश्चन बनाओ, आंसर दे दिया, बोल रहे हैं क्वेश्चन बनाओ। रिसीट पेमेंट इज नथिंग बट योर कैश और बैंक अकाउंट। वैसे तो एक ही कॉलम हो जाता है, बट यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा दिखाएंगे तो 2 कॉलम में बता सकते हो, नहीं तो एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में करके आप सिंगल कॉलम दिखाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। डेबिट इज रिसीट, क्रेडिट इज पेमेंट। देख के जरा बताओ, इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर ऑफ अ बिजनेस? Continuing. कंटिन्यूइंग है। कंटिन्यूइंग ईयर है पक्का, कंटिन्यूइंग ईयर है, डेफिनेटली कंटिन्यूइंग ईयर है, ओके। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जनरल फंड, कैपिटल फंड, सो ऑब्वियसली इट्स अ कंटिन्यूइंग ईयर। तो बेसिकली कुछ ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए कैश का, यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी, कैश और बैंक, राइट। रिसीट पेमेंट शुरू ही होता है ओपनिंग बैलेंस से, करेक्ट। Assuming it is debit, it may be overdraft, I don't know right now. Do we have any information about the opening balance? Please check from the problem. Cash in hand दिया है 4,600, correct? Is that opening or closing? Closing है. Closing balance, that is the closing balance, because see the current year is 15-16, ये तो समझ में आ गया देख के dates, current year is 15-16, तो receipt and payment for the year ended 31st March 16 बना रहे हैं, तो 15-16 का रिसीट पेमेंट बना रहे हैं, ठीक है। और अपने को उसी साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एंड की बैलेंस शीट दी गई है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। नाउ वहां पे जो कैश बैलेंस दिख रहा है दैट इज ऑब्वियसली द क्लोजिंग बैलेंस, so I will write it over here, buy balance carried down, cash, what is my cash balance, cash in hand 4,600, correct।
यहाँ से आप बैलेंस शीट में लिखते हो, बैलेंस शीट से यहाँ पे लिखा। रेडी हो गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग नहीं पता आपने को, ओपनिंग दिया है कहीं पे, एडजस्टमेंट में कहीं पे दिख रहा है, देख लो। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग बैलेंस? ओके, ठीक है, ढूंढ लेंगे हम लोग। नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिसीट एंड पेमेंट पार्ट, कैसे देखने का उसको देखते जाओ। And starting with the expenditure side first. You can do it anyway. Expenditure पकड़ो, payment record करो, income पकड़ो, receipt record करो। मैं expenditure को पकड़ रहा हूँ पहले। expenditure में upkeep of ground दिख रहा है आपको 20,000, वो incurred expense है, याद रखना, वो income and expenditure, that's not paid, that is incurred। कुछ adjustment दिया है upkeep of ground का, the following have been made in the above account, has been made in the above account मतलब वो adjustment करके final amount दिया आपने को upkeep का। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड देखो क्या दिया है, 1200 एंड प्रिंटिंग ऑफ 480 रिलेटेड टू 1415 वेर पेड इन 1516। सो कैन आई से दे आर लास्ट ईयर्स प्रीपेड? नो, लास्ट ईयर्स आउट, दे आर लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, अग्री? वी आर डूइंग इट फॉर करंट ईयर इज 1516। अपकीप ऑफ ग्राउंड 1200 रुपया आपने लास्ट ईयर का ये साल पे किया है, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा अभी। अच्छा, तो आपने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, आपने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा तो क्या किया होगा? इधर अपकीप कुछ तो रहेगा, जो पेमेंट का अमाउंट है उसमें लेस आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ लास्ट ईयर, वो था 1200, तो आपको मिला 20,000 इन द आउटर कॉलम। तो आपको भी उल्टा जाके ये अमाउंट ढूंढना है, तो क्या करोगे? ऐड। और कुछ है अपकीप का एडजस्टमेंट देख लेने का, एक ही था, लॉजिक समझा इसका? तो आपका पेड एक्सपेंस ऑफ अपकीप इज 21,200, पेड इज 21,200, उसमें आपने लास्ट ईयर भी पे किया है, तो माइनस करके इनका एक्सपेंडिचर में आपने दिखाया 20,000 आउट ऑफ ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? all of you? So what's your paid upkeep? Paid upkeep is how much? 21,200 upkeep is 21,200, तो ये मिल गया अपने को। ओके, clear with that? इधर कुछ वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, you can show it as a working note and write the amount in the outer column directly। okay? और नहीं भी दिखा ये चिन्ह मुन्नू में तो चलेगा, एक एक आइटम ओरली भी कर सकते हो। ओके, नाउ प्रिंटिंग 2000 दिया है, कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट प्रिंटिंग का? प्रिंटिंग 480 रिलेटेड टू अगेन लास्ट ईयर वे पेड इन 1516, सेम। तो कितना आएगा पेड में? पेड प्रिंटिंग कितना आएगा? 2480, करेक्ट। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नॉर्मली माइनस होता है, यहाँ पे ऐड किया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देन salaries 22,000, do you have any adjustment on salaries? Check anywhere, बैलेंस शीट में भी हो सकता है, करंट बैलेंस शीट में भी हो सकता है। नहीं है सर, कुछ नहीं है, मतलब क्या अज्यूम करना है? पूरा ये साल ही मिला है, ये साल का ये साल पे किया है, पूरा ये साल का ये साल पे किया है, बराबर है। जितनी सैलरी थी पेड उतनी ही इनकर्ड थी, कुछ ना प्रीपेड था, ना आउटस्टैंडिंग था, ना रिसीवेबल था, नहीं सॉरी क्या रिसीवेबल, सॉरी, ना प्रीपेड था, ना आउटस्टैंडिंग था, ना करंट ईयर का था, ना लास्ट ईयर का कुछ। तो 22,000 वाज पेड, 22,000 इज इनकर्ड। इज्जत से वर्कर ने जितना काम किया परफेक्ट सैलरी उसको दी। Depreciation on furniture should be a part of payment. No. Because it is a non-cash. Because it is a non-cash. We'll come to that asset part later. Rent incurred was 1,200. Check whether you have any adjustment related to rent. कुछ दिख रहा है क्या? rent कहीं पर भी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में कुछ भी दिख रहा है? नहीं है कुछ भी नहीं। कहीं से भी पकड़ के आपको ढूंढना है इन्फॉर्मेशन, कहीं पे भी दिया होगा, आपको पेड एक्सपेंस पे अराइव करना है। तो बाय रेंट क्या होगा यहाँ पे? सेम होगा 1200, पेड इक्वल टू इनकर्ड अज्यूम करना है, जस्ट लाइक सैलरीज। सो योर एक्सपेंस पार्ट इज क्लियर एक्सेप्ट फॉर डेप्री को इग्नोर किया, लेकिन ऑन कैश था।
वैसे लॉस भी दिया होता ना आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, विल यू टेक इट और इग्नोर इट? Ignore it. Ignore it. Profit losses are also non-cash. Profit losses are also non-cash. Agree? Now, Sir, the price fund distributed, that will also come in payment, no? हाँ आएगा ना. अरे मैं अभी एक एक स्टेप में जा रहा हूँ, बैलेंस शीट को नहीं पकड़ा अभी तक, एक्सपेंडिचर खाली खत्म किया. ओके, I completed the expenditure part. Now let us catch the income side. Let us catch the income side. Okay, subscription. सबसे पहला सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 34,640. बट क्या वो रिसीव्ड है? नहीं, वो तो अर्नड है. हमें ढूंढना है रिसीव्ड, हमें ढूंढना है रिसीव्ड, राइट? तो रिसीट साइड पे आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन पे कितने एडजस्टमेंट है? आई थिंक 1 2 3 4 है. चारों को उल्टा करना है, कंसेप्ट याद रखना. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 14-15 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. नॉर्मली माइनस करते हो, यहाँ पे क्या करना है? प्लस कर देना. तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये अर्नड है, दिस इज अर्नड. कितना है? 34,640. 34,640. इसमें प्लस 1,600. क्यों प्लस किया समझा? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. एंड फॉर 15, 16, 1,400, मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 1,400. नॉर्मली यू वुड हैव एडेड, रिसीट पेमेंट बनाना है तो माइनस. वैसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ 14, 15, मतलब लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है. लास्ट ईयर का प्री रिसीव क्या करते हो नॉर्मली आप? लास्ट ईयर का प्री रिसीव क्या करते हो नॉर्मली? ऐड करते हो. तो यहाँ पे क्या करने का? लेस करते हो 400. और एंड 15, 16 फॉर 16, 17, मतलब 16, 17 मतलब इस साल का प्री रिसीव 200 रुपया. नॉर्मली आप लेस करते हो ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे. कितना मिला? 34,460. सेम आ रहा है, सेम आ रहा है. उल्लू बनाया आपने. सेम आ रहा है आंसर, बराबर है. 34,640. इट इज सेम आंसर. हर बार सेम नहीं आएगा, कोइंसिडेंटली इट इज सेम. ये चार फिगर का गम्मत है, आ रहा है. Okay, every time so many sums you have done, received subscription is always different from your earned subscription. Okay, so coincidentally it is same, लेकिन same भी आ सकता है. तो लिख दो 34,640. Got it? This is received. हेलो, हर सम में सेम नहीं आएगा, और इतने सम किए हैं कभी आया भी नहीं है. Coincidentally it is same. Okay, सर ये सब प्लस माइनस रिसीट पेमेंट में दिखा सकते हैं? रिसीट पेमेंट में दिखाने से अच्छा है वर्किंग नोट में दिखाओ. अच्छा, और फिर रिसीट में दिखा दो डायरेक्ट. क्योंकि रिसीव्ड में तो तुमने कैश टू सब्सक्रिप्शन का एंट्री सीधा किया है, इधर वर्किंग मत दिखाना. तो द वर्किंग एज अ नोट. आता है ना वो लिख के 2006 का सेम एंड देन 2000 वैसे लिख के दिखा सकते. ऊपर मत करो, जो करना है वर्किंग नोट बनाओ, जो करना है वर्किंग नोट में दिखाओ, और फिर ऊपर फाइनल अमाउंट दिखा दो. नाउ सब्सक्रिप्शन के बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स. सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स. ओके, रॉन्ग नहीं है दिखाया तो वर्किंग यू कैन शो, नॉट एन इश्यू. ओके, बट वर्किंग नोट में दिखाया तो बेटर है. सेल ऑफ न्यूज़पेपर. सेल ऑफ न्यूज़पेपर में कोई है? कुछ होगा भी, उस बेचारे को कोई पूछता भी नहीं है. तो जितना इनकम है उतना रिसीट होगा, मान के चलो. ओके, कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है सेल ऑफ न्यूज़पेपर. सन्ड्री इनकम है, कितना पैसा आया? 520. बराबर है, कंफर्टेबल. नेक्स्ट, लेक्चर्स. तो लेक्चर्स का पैसा मिला है, कुछ एडजस्टमेंट है लेक्चर्स का, पढ़ो कहीं पे भी बैलेंस शीट में, ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं. तो 2 लेक्चर्स, वी अज्यूम कि जितना लेक्चर्स का फीस है रिसीव्ड है उतना ही आपका इनकम, दैट इज 3,000. गॉट इट? देन एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या एंट्रेंस फीस के बारे में? 1/2 of the entrance fee has been capitalized but transferred to general fund. General fund means capital fund. Okay, general fund is another name for capital fund. Don't get confused. General fund means capital fund. So क्या दिया है? आधा हमने कैपिटलाइज किया,
तो आधा इनकम में होगा ना, तो रिसीव कितना किया होगा? 1200 5200 बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको? एंट्रेंस फीस आपने ऐड किया 2600 करंट ईयर बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में 5200 था, इसलिए आपने आधा इनकम में दिखाया और आधा कैपिटल फंड में ऐड किया। ऋषा राणा को समझ रहे हैं? सो टू एंट्रेंस फीस कितना आएगा? 5200 आएगा। इज दैट क्लियर? 2600 प्लस 2600 मिसलेनियस इनकम, वो तो जितना आया उतना रिसीट है। मिसलेनियस इनकम दैट इज 800। कुछ है नहीं उस पे एडजस्टमेंट। डेफिसिट, विल यू हैव एनी डेफिसिट इन रिसीट पेमेंट? No. Okay, now let's go to the balance sheet and check if you are getting some item of receipt and payment. सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लायबिलिटी साइड पे देखते जाओ। हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हो गया एडजस्ट? यस। हाँ। प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस कहाँ से टपका ये ओपनिंग बैलेंस प्राइस फंड का? लास्ट ईयर लायबिलिटी में होगा ना, ओपनिंग बैलेंस दिया है तो लास्ट ईयर ही पैसे आ चुके होंगे, लास्ट ईयर के लायबिलिटी से टपका है। ठीक है। इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट 2000, ये एड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा इंटरेस्ट? इन्वेस्टमेंट करके जो मिला वो। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट होगा ये। जैसे कि हमने कल ही कुछ एक एग्जांपल में देखा था, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट एडेड टू बिल्डिंग फंड। तो वैसे कोई फंड का रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है फंड में ऐड हो जाता है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट ऐड टू प्रोविडेंट फंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हम लोग इनकम में नहीं दिखाते हैं, माइंड इट, हम लोग फंड में ऐड कर देते हैं बिकॉज इट इज एन अनसर्टन इररेगुलर इनकम, टेम्पररी शॉर्ट टर्म इनकम, नॉट अ रिकरिंग इनकम। अंडरस्टूड? तो ये भी एक्चुअली पैसे मिले हैं आपको, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ये साल, लेकिन आपने इनकम में नहीं दिखाया, आपने प्राइस फंड में ऐड किया। याद आया? अब वो सम उठा के देख सकते हो, अभी हमने किया था 2 दिन पहले। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट रिसीट में था, इनकम में नहीं दिखा के हमने बिल्डिंग फंड में ऐड किया था। इसका लॉजिक क्या है समझ आ रहा है? टेम्पररी इनकम है, हर साल नहीं आएगी, तो वो एसेट में कैश बढ़ा और यहाँ पे आपका फंड बढ़ गया, ऐड कर, फिर उस कैश को आप वापस री इन्वेस्ट कर दोगे एंड द साइकिल विल कंटिन्यू टिल इट इज रिक्वायर्ड। प्राइजेस का जैसे देने का समय आएगा उसको बेच के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पे कर दो। ओके, so interest is received, this is to interest on price fund investment। एसेट साइड आपको दिख रहा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये उसका इंटरेस्ट 2000 रुपया। लेस प्राइजेस, इस साल आपने 4 साल के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या है ये? इनकम एक्सपेंस, व्हाट इज दिस? एक्सपेंस। लेकिन वी नो दैट फंड का लॉजिक, फंड का रिलेटेड इनकम है तो एड टू फंड और एक्सपेंस है तो डिडक्ट फ्रॉम फंड। तो पे तो किया है, पेमेंट में तो होगा। आंसर लिखते वक्त हम लोग फंड में से माइनस करते थे इसको। थिंक उल्टा, थिंक अबाउट द क्वेश्चन। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो वेयर यू विल शो द प्राइजेस, वेयर यू विल शो द प्राइजेस? एक्सपेंस, पेमेंट, हियर इट विल बी पेमेंट बाय प्राइजेस या प्राइस एक्सपेंस। कितना है? by 4000। Are you getting this? अच्छा, समझो कोई डोनेशन फॉर प्राइस फंड हमने ऐड किया होता इस पे, तो वो भी कहाँ आता? रिसीट में। वो डोनेशन फॉर प्राइस फंड भी रिसीट में आ जाता अगर कुछ ऐड किया होता तो। जा रही है बात? ईशा प्रियल, बोथ ऑफ यू, यश पटेल, चलो। नाउ एंट्रेंस फीस हो गया, अच्छा नहीं सॉरी, प्राइसेस हो गया। जनरल फंड, व्हाट इज जनरल फंड गाइस? व्हाट इज जनरल फंड? कैपिटल फंड है भैया, कैपिटल फंड इज कैपिटल फंड, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग यहाँ पे टपका ओपनिंग बन के। देन डेफिसिट है, डेफिसिट तो हम लोग करते नहीं, एंट्रेंस भी हमने ऑलरेडी कर दी है, तो लायबिलिटी से खत्म हो गया। कम टू द एसेट साइड। फर्नीचर, फर्नीचर एसेट में फर्नीचर है। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये साल खरीदा होगा या तो लास्ट ईयर से टपका है। क्या बेटर अजम्पशन लग रहा है? लास्ट ईयर लास्ट ईयर से टपका होगा।
लास्ट ईयर से टपका होगा। इंफॉर्मेशन में तो कुछ नहीं है, आपके हाथ में क्या अज्यूम करना है। व्हाट इज बेटर टू अज्यूम? लास्ट ईयर परचेज बेटर है अज्यूम करना। ओके, का परचेज कर सकते हो, बट इट विल बी स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि आपको कंटिन्यूएशन है, बैलेंस शीट आ रही है, तो फिक्स्ड एसेट भी जनरली ऊपर से टपके होंगे। ओके, तो लास्ट ईयर अज्यूम करना। अच्छा, व्हाट अबाउट ग्राउंड एंड बिल्डिंग? सेम, लास्ट ईयर से टपका होगा, तो इस साल के रिसीट पेमेंट में नहीं होगा, राइट? अच्छा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इस साल इन्वेस्ट किया है कि लास्ट ईयर से आ रहा है? लास्ट ईयर से आ रहा है। लास्ट ईयर से आ रहा है क्योंकि प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, तो वहां पर ही आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया होगा पैसा इमीडिएटली। ओके, तो प्राइस फंड और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दोनों ऊपर से टपक रहे हैं। कैश इन हैंड हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। बैलेंस शीट छान ली, ये छान लिया, निचला एडजस्टमेंट भी छान लिया, तो बस बन गया अपना रिसीट पेमेंट। और कुछ बचा? डेफिसिट। क्लोजिंग बैलेंस में कैश ले सकते हैं ना वो? हाँ, वही हाँ, ले लिया। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस में कैश ले लिया। डेफिसिट आता है क्या यहाँ पे? रिसीट पेमेंट कभी डेफिसिट सरप्लस आता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता। अभी ये रिसीट पेमेंट रेडी है, जो मिलेगा वो क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर। 920 आ रहा है, 920 आ रहा है, 920 आ रहा है। नहीं, 9320 आ रहा है। ओपनिंग कैश 9320 आ रहा है। 9320 है। टोटल कितना है? 55480। 55480 55480 ये आ रहा है आपको ओपनिंग कैश। सही है कि गलत? पता नहीं, सब तो डाल दिया। हाउ टू वेरीफाई? कैन एनीवन टेल मी a way you can verify this? ओपनिंग बैलेंस शीट से बेस्ट। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के चेक करो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या ये कैश फिगर के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर राइट है। कैपिटल फंड दिया हुआ है ना आपको, नॉर्मली कैपिटल फंड इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट? यहाँ पे कैपिटल फंड रेडी है, तो सब आइटम्स है आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट के, जस्ट पुट देम एंड पुट दिस कैश एंड चेक वेदर इट टैलीज। फटाफट बनाते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। चलो, लेट्स मेक अप एन ओपनिंग बैलेंस। सॉरी, व्हाट? अगर इस साल कोई एसेट वैसेट होता तो वो भी आता था ना? इस साल का कोई परचेज ऑफ एसेट होता तो वो पेमेंट साइड दिखता था, यस। तो अपने पास कुछ एडिशनल इन्फो तो था नहीं परचेज का, अपने पास जो फर्नीचर है वो फाइनल वैल्यू है, तो उसमें कुछ परचेज भी हो सकता है, वी डोंट नो। सो वी आर अज्यूमिंग दैट फुल फर्नीचर केम फ्रॉम लास्ट ईयर, वी आर अज्यूमिंग दैट फुल फर्नीचर केम फ्रॉम लास्ट ईयर। तो सर इसका असम्पशन लिखना पड़ता है? नहीं, जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। ओके, बिल्डिंग फर्नीचर इट्स फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। असम्पशन वो मैंने दिया था ना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का, जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे कल। बैलेंस शीट क्या अपना 2 दिन पहले एक सम किया था, बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट ही बना रहे थे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे थे। उसमें लास्ट ईयर प्रीपेड या करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या अज्यूम किया है, वो असम्पशन आप लिख सकते हैं, जरूरत। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, ओके, शुरू करते हैं। फर्नीचर कितना होगा लास्ट ईयर, बता सकते हो? 20,000। वेरी गुड, ये साल आके डेप्रिशिएट हुआ, परफेक्ट। ग्राउंड एंड बिल्डिंग 94 सेम होगा, 94। ओके, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट सेम होगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट सेम होगा, 40,000। कैश इन हैंड कितना लिखा हमने, कैश इन हैंड कितना मिला अपने को? 9320। 9320। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अच्छा लास्ट ईयर का कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है अपने को एडजस्टमेंट में? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वो 1600 मिला। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, सो लास्ट ईयर एसेट में जाएगा 1600। और कुछ है एसेट में लास्ट ईयर का, चेक कर लो बस, दैट्स इट। गो टू द लायबिलिटीज, कैपिटल फंड यूजुअली बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन यहाँ पे दिया है। व्हाट शुड आई राइट एज कैपिटल फंड? 112840। 112840 लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ये, ऑलराइट। और क्या है लायबिलिटी साइड? प्राइस फंड होगा, प्राइस फंड होगा। लास्ट ईयर से ओपनिंग बैलेंस का है अपने पास कितना है?
50,000 है, 1000 और क्या होगा? जनरल फंड लिखा, प्राइस फंड लिखा, इंटरेस्ट, प्राइजेस, डेफिसिट, एंट्रेंस फीस, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर का प्री रिसीव कितना था? लास्ट ईयर का प्री रिसीव देखो दिया है आपको इन्फॉर्मेशन में 400 रुपीज, 400 रुपया लास्ट ईयर का प्री रिसीव था। और कुछ आएगा लास्ट ईयर लाइबिलिटी में? Keep of ground और printing. यस परफेक्ट, अपकीप ऑफ ग्राउंड आउटस्टैंडिंग था, कितना था? 480। एंड प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग था, प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग था सॉरी, दिस वाज 12 months. Printing outstanding था 480 and this was 12 months. I don't think so any other asset or liability is left out from last year. It should tally now. If your cash balance is right, it should tally. 164, 920. It will have a difference. 164, 920. 920. दोनों साइड चेक कर लो। 164, 920 पे टैली हो रहा है। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। कैश बैलेंस राइट है तो ही टैली होगा ना। गलत कैश मिला है, आपने कोई आइटम नहीं डाला है रिसीट पेमेंट साइड पे, तो ये डिफरेंस दिखा देगा आपको। समझ आई बात? हेलो, ये होता है पूरा एनपीओ का अगला पिछला अंदर बाहर का चिट्ठा। पूरा सम बैठा दिमाग में? सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है। पूछा है क्या? बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मेक रिसीट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मेक अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, याद है? प्री रिसीव्ड, रिसीवेबल and balance we transfer to income and expenditure. This is subscription account. Subscription account. Okay. Will it have any opening balance subscription? No. No opening balance, right? Nominal है। कितना रिसीव किया है आपने सब्सक्रिप्शन? 34,640। जो रिसीट साइड पे मिला आपको सेम आंसर है ऊपर और नीचे, इनकम साइड और इसका। रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इज 34,640। तो मैंने क्या एंट्री मारा होगा? कैश टू सब्सक्रिप्शन मारा होगा। तो सब्सक्रिप्शन में बाय कैश 34,640 सर, बराबर है। अभी मुझे बात बताओ, करंट ईयर प्री रिसीव्ड का क्या एंट्री होता है? करंट ईयर प्री रिसीव्ड का एडजस्टमेंट एंट्री सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव्ड। तो लास्ट ईयर का क्या होगा? उल्टा, प्री रिसीव्ड टू सब्सक्रिप्शन, राइट? प्रियल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्री रिसीव्ड टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे? बाय प्री रिसीव्ड, बराबर है। बाय प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, बाय प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना था लास्ट ईयर का प्री रिसीव? 400। अच्छा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट? यश पटेल, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल टू इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन होता है ना। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का क्या होगा एंट्री? सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, इसलिए माइनस करते हो। याद आया? एक कॉमन एंट्री मारा है हमने, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, कितना था वो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर? 1600 था। अभी करंट ईयर का वैसे ही दोनों एडजस्ट करो, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? इट इज इनकम रिसीवेबल टू इनकम। तो सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1400। एंड प्री रिसीव्ड का क्या है? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस हो रही है। तो सब्सक्रिप्शन में टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, how much was that? 200 रुपीज। अब जो बचा सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इधर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, सब्सक्रिप्शन और सैलरी अकाउंट सेम। दिस इज 34, दिस इज आएगा तो 34,640, टोटल कितना है? टोटल 36,440। 36,440। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दो और बनाए थे हमने, याद है, प्री रिसीव्ड और रिसीवेबल। उसमें कुछ नहीं है, बैलेंस बैलेंस और ट्रांसफर ट्रांसफर सब्सक्रिप्शन। रिसीवेबल में टू बैलेंस, रिसीव्ड इन एडवांस में बाय बैलेंस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं बताइए। देन नेक्स्ट सम नंबर इसमें कोई डाउट है? पक्का बोलो मेरे को, पक्का बैठा दिमाग में? हाउ टू मेक रिसीट एंड पेमेंट, सिमिलर टाइप उठा रहे हैं अभी। 46 सम नंबर 46, सम नंबर 46। थोड़ा और कंसेप्ट टेस्टिंग। इसमें आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट दिया है, बैलेंस शीट भी नहीं दिया, और बनाओ सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है और एडजस्टमेंट दे दिया है। ट्राई कर रहे हो? रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है? साथ में करना है कि ट्राई कर रहे हो? बोलो जो बोलोगे। ट्राई करते हैं। ट्राई करना है, सब लोग करोगे? समझ में आ गया लास्ट सम? तो फिर ये इजी हो जाएगा आपसे। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, तो देन विल सॉल्व इट टुगेदर। जेन्युइनली टेल मी, एनीवन। अगर पूरा बैठ गया दिमाग में बात, क्या किया था हमने लास्ट सम में, कितना पैसा गया, तो फिर आ जाएगा यार। सर कौन सा सम? 46। For the safe side, we should also make opening balance sheet, na? Very good. For the safe side, make opening and closing balance sheet. यहाँ पे closing भी नहीं तो है। वैसे भी पूछा है ना? कैपिटल फंड में, सॉरी, क्लोजिंग वैसे भी पूछा ना, तो बना नहीं है ना? क्लोजिंग पूछा है क्या? हाँ पूछा है, सॉरी यार पूछा है। नहीं पूछा है तो भी बनाने का, दोनों बना देने का। आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। क्लोजिंग तो पूछा है तो आपको दोनों बनाना है, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो कौन सा आइटम जाएगा रिसीट पेमेंट में, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये आ गया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया एनपीओ का, समझ। सर साथ में ही करो। चलो साथ में करते हैं। यू कैन ट्राई, आई बी आस्किंग यू ओनली, यू आंसर, ठीक है? बट आई एडवाइस घर पे ये सब वापस पकड़ के चेक करना पूरा। आज के आज नहीं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर है कि। This is receipt and payment. I'm making a closing balance sheet. Balance sheet on 31st December 16. Closing और एक ओपनिंग में बना लेना। ऐसा टाइप ही आएगा एग्जाम में, चेक करके चलो। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 15. Okay, now starting with salaries. I take the expenditure side first. Okay, see the income and expenditure में expenditure पकड़ो पहले, salary. ये salaries incurred है 4750. अभी चेक करो कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या सैलरी? हाँ है। Prepaid at the beginning were 400 and at the end were 450.
तो नॉर्मली क्या करते हो, करंट ईयर प्रीपेड माइनस लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, इधर उल्टा क्या करोगे, करंट ईयर प्रीपेड ऐड लास्ट ईयर प्रीपेड लेस। तो सैलरी क्या हो जाएगा आपका, सैलरी विल बी 4750 plus 450 minus 400, that is 4008, correct? This is incurred, जो expense में दिख रहा है, okay? Current year prepaid add, last year prepaid less, so 4800 is paid salary, payment side लिखना है by salary 4800। नेक्स्ट वन, सैलरीज के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ है उसमें एडजस्टमेंट? हाँ है। क्या दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, तो करंट ईयर प्रीपेड होगा, कुछ नहीं दिया है तो लेस किया होगा, तो यहाँ पे ऐड करने का, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंस कितना मिलेगा, 560 मिलेगा, 500 plus 60, agree? Then legal fee, इंश्योरेंस होगा ना, एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट ना, ठीक है, साइमल्टेनियसली यू कैन गिव, चलेगा, इफेक्ट दे दो, एंड में देना तो एंड में दो, वांदा नहीं, लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 60, तो वो वाला भी लिख दो, पहले वाले का सैलरी था ना, सैलरी प्रीपेड, करंट ईयर प्रीपेड सैलरी, करंट ईयर प्रीपेड सैलरी कितना था 450, और लास्ट ईयर प्रीपेड सैलरी लास्ट ईयर एसेट में लिख दो 400, बराबर है। देन लीगल फी पे कुछ है, लीगल फी फॉर 2016 इज येट अनपेड, during 2016 legal fee of 2015 was paid amounting to 200, what is the amount of legal fee, 250 है, बराबर है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। हाँ अभी देखो क्या दिया है, लीगल फी फॉर 2015 was paid in the current year, तो ये जो है लीगल फी आपको दिख रहा है एक्सपेंडिचर साइड, वो इनकर्ड एक्सपेंस है 250, बराबर है। अभी इसमें दिया है कि आपने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पे किया 200, तो नॉर्मली आप माइनस करते हो, यहाँ पे आप ऐड करोगे, तो आपने टोटल पे किया होगा 450, करेक्ट और अच्छा 450 आपने पे किया है टोटल, लेकिन उसमें बोल रहा है कि आपका करंट ईयर पूरा लीगल फी आउटस्टैंडिंग है, तो ये 450 भी एक्चुअली पेड नहीं है आपका, करंट ईयर का लीगल फी आउटस्टैंडिंग है, तो आपने ऐड किया होगा, उस अमाउंट को अराइव करने के लिए 250 पे अराइव करने के लिए आपने ऐड किया होगा, तो यहाँ पे उल्टे जाना है तो क्या करोगे, माइनस करना है। आर यू गेटिंग दिस? सर ये वापस बोलो ना एक बार। वन सेकेंड एलेक्स, लीगल फी इनकर्ड कितना है, 250 है ना, legal fee incurred is 250, got that? Now legal fee for the during the year, legal fee of 2015 was paid amounting to 200, तो चलो समझो मैंने 450 रुपीज पे किया है, ले रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंड, 450 रुपया पे किया, तो इसमें लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, कितना है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 200, बराबर है, तो ये होता है 250, तो करंट ईयर का एक्सपेंस में जा रहा है 250, बराबर। अभी क्या दिया है कि करंट ईयर का पूरा लीगल फीस अनपेड, करंट ईयर का लीगल फीस अनपेड मतलब एक्चुअल 450 नहीं है, वो तुमने जो पे किया है ना उसमें 200 ही तुमने पे किया होगा लास्ट ईयर का, ये 450 पे नहीं किया होगा,
₹200 ही पे किया होगा, 250 आउटस्टैंडिंग हुआ। तो कितना मिला करंट ईयर का? नील हो गया ये। ₹200 मैंने पे किया, लेकिन वो तो पूरा लास्ट ईयर का था। तो अगर मुझे एक्सपेंस साइड पे देखना है, ये एक्सपेंस साइड है, तो 200 का 200 लास्ट ईयर का था, तो 0 हो गया। लेकिन अपने को फिर भी एक्सपेंस साइड कितना दिख रहा है? 250 दिख रहा है। तो वो 250 क्या है? पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फी इसमें ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 250, तब जाके ये मिलेगा तुमको 250, तब जाके ये मिलेगा 250। तो एक्चुअल लीगल फीस पेड इज हाउ मच? ओनली 200। ₹200 लास्ट ईयर की फीस थी, वही तुमने ये साल पे की, और एक्सपेंस में वो 0 हो गया। फिर ये साल का आउटस्टैंडिंग 250 ऐड किया, तब जाके वो 250 दिख रहा होगा तुमको आउटर कॉलम। समझ आ रही है बात? अरे एक बार समझाओ ना वापस। देखो, हाँ, तुम तो नहीं तुम समझ एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लो। चलो हाइपोथेटिकल फिगर ले लो, समझो ₹500 पे किया है ना, ₹500। तो ₹500 मैंने पे किया है, उसमें 200 लास्ट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, 200 लास्ट ईयर का है, तो बचा कितना? 300, राइट? करंट ईयर का कितना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरे को 300 मिल रहा है। उन्होंने बोला कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होना चाहिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होना चाहिए। तो ये आउटर कॉलम वाला अमाउंट ऑब्वियसली 300 से ज्यादा मिलेगा मेरे को, जो कि नहीं है केस। assume that you have paid 500, assume that you have paid 500, कोई भी फिगर ले लो, 500, 600, 700, कोई भी फिगर ले लो। assume you have paid 500, तो 500 में से 200 लास्ट ईयर का है, ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं सपोज, तो 200 माइनस करूंगा ना लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। हेलो, तो आई शुड गेट 300, आई शुड गेट 300। वहां तक समझा कि नहीं? अभी इसमें मैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा, तब मुझे 250 मिलना चाहिए। इज इट पॉसिबल? तो चलो, ये फिगर 500 तो नहीं है, उससे छोटा ही है, एंड छोटा बाय हाउ मच? छोटा बाय 250, क्योंकि 250 भी नहीं, सॉरी, छोटा बाय 300, क्योंकि तुमने एक्चुअली पे किया है खाली ₹200। यू हैव पेड ओनली 200। व्हाई यू हैव पेड 200? ये देखो, ₹200 पे किया है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर में अगर माइनस करूं, तो 200 माइनस करके नील हो गया। फिर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लीगल फी। आई एम अज्यूमिंग दैट जो 250 दिख रहा है वो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, और कोई फिगर ही नहीं है अपने पास। तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 250 किया होगा, तभी आउटर कॉलम मिला है। अच्छा चलो, ₹200 पे किया है ना, उसके जगह 250 पे करके देखते हैं क्या होता है। पेड 250, ठीक है, पेड 250 है सपोज, लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर ₹200 है, तो बचा 50, करेक्ट, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 200 करूं तो 250 मिल गया मेरे को आंसर। ये हो सकता है ऑप्शन, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 200 हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, लेट अस अज्यूम आई हैव पेड 150, I have paid 150. Is it possible that is 150 में ₹200 लास्ट ईयर का रहेगा? हो नहीं सकता। अच्छा, let us assume I have paid 240, इसमें पॉसिबल है, राइट? 240 में लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 200, बचा 40, प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 210, that's why I'm getting 250. So 210 can be outstanding of this year, right? Let us assume 230. So what I'll get? 220 as outstanding of this year.
So I am getting different possible answers for outstanding expense of current year. I don't know what is the outstanding expense of this year. So what is the only logical way to think about it? जो आपको 250 outer column में दिख रहा है, assume that entire 250 is outstanding. क्योंकि वो तो फिर आउटस्टैंडिंग आप कोई भी ले लो हाइपोथेटिकल फिगर, आपको मिलते ही रहेगा अलग आंसर. कभी 210 मिलेगा, 200 मिलेगा, कभी 215 मिलेगा, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 200 से 250 तक कुछ भी आते रहे. समझा कि नहीं? इसका एक ही लॉजिकल वे है सोचने का. क्या सोचो कि 200 रुपए आपने पे किया, वो लास्ट ईयर का था, तो 0 हो गया. पर सर वो 250 पे कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उन्होंने बोला है करंट ईयर का फुल आउटस्टैंडिंग है एंड लास्ट ईयर का 200 पेड है, तो वो हाँ, पेड. तो आई एम नॉट सेइंग दैट 250 is outstanding in this example. If you are paying 250 and that includes 200 of last year, that means 50 rupees बचा है. हाँ, वो तुम्हारा करेक्ट है. ये 50 रुपीज करंट ईयर का हुआ, ऐसा सीन हो रहा है फिर तुम्हारा. हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है. बराबर है, एग्जैक्टली करेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है. तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये पॉसिबल ही नहीं है. एग्जैक्टली बराबर है, परफेक्ट. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो कि 50 आपने पे किया है करंट ईयर, यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो 40 आपने पे किया है करंट ईयर. ये पॉसिबल ही नहीं है. गॉट इट? तो 250 का 250 पूरा ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने खाली 200 रुपया ही पे किया लास्ट ईयर. गॉट इट? परफेक्ट, परफेक्ट, करेक्ट. ओके, सो 200 रुपीज में 200 पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर उड़ा दिया. इस साल का कुछ भी नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा 250 इज आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर. ऐड कर लिया, आउटर कॉलम 250 मिल गया. तो पेड कितना होगा? व्हाट इज योर पेड एक्सपेंस? 200 ही है, तो पेड इज ओनली 200. यू कैन शो इट ओवर हियर ऑन द पेमेंट साइड. बाय लीगल फी 200. बाय लीगल फी 200. बोलो. इसमें अपने को एक्सपेंडिचर में 250 दिया है. हाँ, तो उसमें जो ये करंट ईयर का है वो माइनस किया, करंट ईयर और का लास्ट माइनस आउटस्टैंडिंग. अरे सॉरी, मतलब 250 में पहले 200 ऐड किया तो 450 आया. लास्ट ईयर का था ना, तो 450, तो 200 ऐड किया. बाद में करंट ईयर का 250 सब्ट्रैक्ट किया, तो 200 आ गया. वैसे चलता है क्या? हाँ, वही है, बराबर है, परफेक्ट. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 200 है, यही है. लीगल फी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 200 है, वो ऐड किया. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 250, वो माइनस किया, तो 200. ओके, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 200, 250 माइनस लास्ट ईयर का 200 ऐड. सिंपल एज दैट. दिस इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. ओके सर, एक सेकंड. टोटल पे किया हम लोग ने 250. टोटल पे किया हमने 200, नॉट 2. टोटल पे किया 200 प्लस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 200 माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर कैसे मिला? करंट ईयर का पूरा पेएबल है ना. करंट ईयर का पूरा पेएबल है, तो जो 250 दिख रहा है उसमें एक भी रुपया तूने पे नहीं किया करंट ईयर का, तो वही आउटर कॉलम में दिख रहा है 250. You do one thing, you prepare the expense side and you'll, if you write two legal fees. हाँ, तो ये देखो एक्सपेंस साइड देख लो. चलो एक्सपेंस साइड देख लो. दिस इज द एक्सपेंस साइड. ओके, टू लीगल फीस you have paid 200 less outstanding fees of last year, that is 200, plus outstanding fees of current year 250, क्योंकि पूरा का पूरा बाकी था. करंट ईयर का कुछ पे ही नहीं किया तुमने. That's why in the outer column you got 250. Got it? अभी यहाँ पर मैं उल्टा जा रहा हूँ. सॉरी, I wrote here 200. यहाँ पर मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो ये 250 is not paid, ये 250 is incurred. Legal fees incurred, ये वाला outer column वाला, ये legal fees incurred is 250. इसमें हम लोग उल्टे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड.
करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 250, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 200, हो गया। समझा अभी कि नहीं? बोलो। करंट ईयर का 250 पूरा का पूरा देना बाकी है, लास्ट ईयर का 200 ही पे किया, तो लास्ट ईयर का 200 पेड है, तो कम टू योर लीगल फी 200 पेड। ओके, तो एनी अदर डाउट इसमें? अभी भी डाउट कंफ्यूजन है? बोलो। डन। नाउ लीगल फी के बाद आगे बढ़ते हैं। सर बैलेंस शीट में लिख देता है। बैलेंस शीट में लिख दो ना, बैलेंस शीट में साथ में लिखना है तो लिख दो। चलो, बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ना, तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी में डाल, ये लास्ट ईयर है, आउटस्टैंडिंग लीगल फी दैट वाज 200। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग लीगल फी दैट इज 250। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग लीगल फी इज 250। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टाफ बोनस। कुछ दिया है स्टाफ बोनस का? नथिंग, आई थिंक no adjustment, right? The staff bonus, what do we assume for staff bonus? फुल्ली पेड। Fully paid, जितना है इनका उतना fully paid, so by staff bonus fully paid, that is how much? Staff bonus is fully paid, that is 459,000। स्टाफ बोनस इज फुल्ली पेड, कुछ नहीं दिया तो पेमेंट इक्वल्स एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस कुछ दिया है? टेलीफोन एक्सपेंस नहीं दिया। टेलीफोन एक्सपेंस कुछ नहीं दिया। ओके, टेलीफोन एक्सपेंस इज 150, तो सेम का सेम 150 और 450। 450। देन वी हैव टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस में कुछ दिया है क्या? टूर्नामेंट एक्सपेंस और टूर्नामेंट इनकम का कुछ नहीं है, तो सेम लिख दो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस। जितना पेड है उतना इनकर्ड है, नो चेंज अबाउट दैट, बराबर है? So that is 1500, that is 1500, बराबर है? Interest and bank charges 150. Anything about interest and bank charges? I don't think so. So same value, interest and bank charges, whatever is incurred the same is paid, that is 150. Then depreciation का आएगा कुछ पेमेंट साइड? Will you write depreciation on the payment side? No, not possible. Surplus आएगा कुछ? No surplus. सब्सक्रिप्शन को पकड़ो अभी, टू सब्सक्रिप्शन कैसे करने का? सब्सक्रिप्शन टू बैलेंस आएगा ना सबसे पहले। हाँ सॉरी, टू बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा सबसे पहला, इज ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, और फिर आएगा टू सब्सक्रिप्शन। कैश दिया है क्या कुछ? ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? चेक करो, बैलेंस शीट तो नहीं है, कैश बैलेंस दिया है क्या कुछ? On 31st December 2016, the cash at bank in hand amounted to 2,600. 31st December 16 is what? Opening or closing balance है, buy balance CD 2,600, ये देख के छोड़ दिया, बराबर है? अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है, छोड़ दो। Then सब्सक्रिप्शन earned सब्सक्रिप्शन दिया अपने को, कितना earned सब्सक्रिप्शन? What is our earned subscription? 1,500. 7,500. 7,500. With 7,500 में there are I think 4 adjustments. 4 adjustments है सब्सक्रिप्शन का. Can you all see that? 4 adjustments of subscription. चारों को उल्टा करना है. ये earned subscription से शुरू करना. Earned subscription कितना है तुम्हारा? Just write it over here. Subscription earned.
जो आउटर कॉलम है दैट इज 7,500. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 15. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हो नॉर्मली माइनस इधर प्लस 1,600. Then received in advance as on last year. So normally we add, here we subtract. That is 1,450. Pre-received last year. Current year received in advance is 370. Normally we subtract, here we add 370. Pre-received of current year. And 850 outstanding as on 31st December. Normally we add, here we subtract. So minus 850 current year outstanding. कितना मिला चेक करो. 7170. 7170. 7170 is my total subscription received. समझा सबको. लाइफ मेंबरशिप फीस 250 इनकम में दिखाई हुई है. लाइफ मेंबरशिप फीस का कुछ एडजस्टमेंट दिया है, प्लीज चेक कर लो. एनी एडजस्टमेंट ऑन लाइफ मेंबरशिप फीस? नो. तो पूरा का पूरा इनकम में दिखाया, रेवेन्यू दिखाया है वो लोग ने. हर साल लाइफ मेंबर आते होंगे. लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू में आएगा, कितना आएगा? तो 250. Perfect. And then we have contribution for tournament. Contribution for tournament. No information is given, so पूरा का पूरा receipt में आ गया है. Contribution for tournament. फंड में नहीं डालना है. That is 1,000 and annual sports meet receipt. Annual sports meet receipt. No info is given, so this is 7. यहाँ तक समझ आ गई? अभी ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है अभी भी अपने पास. ओके, एडजस्टमेंट्स पे जाओ, एसेट लायबिलिटी ढूंढने की ट्राई करो. सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं बैलेंस शीट में. यस, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 850. करंट ईयर का प्री रिसीव्ड भी लिखना है. करंट ईयर का प्री रिसीव्ड है 370. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 1600 था. लास्ट ईयर का भी प्री रिसीव था 1450. देन सैलरीज एट द बिगिनिंग एट द एंड लिखा. मिसलेनियस हो गया, लीगल फी हो गया. क्लब ओन्ड स्विमिंग पूल. ओन्ड मतलब कहाँ से टपक रहा है ये? लास्ट ईयर से आ रहा होगा स्विमिंग पूल. तो लास्ट ईयर एसेट में लिख दो 10,000. 10,000 का लास्ट ईयर और उसको लेके आओ करंट ईयर में स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल इन द करंट ईयर 10,000. और उस पे कुछ डेप्री वेप्री करने को बोला है? नहीं बोला है. आई डोंट थिंक सो. अभी आगे दिया है प्लेग्राउंड 20. ओन्ड है, ठीक है, ओन्ड है. तो लास्ट ईयर से टपक रहा है. तो लास्ट ईयर आपका प्लेग्राउंड होगा 20,000. ब्रिंग इट टू दिस ईयर प्लेग्राउंड 20,000. कुछ डेप्री वेप्री नहीं है, ठीक है. क्लब हैड फर्नीचर ऑन 1st January 2016 valued at 2,600. 1st January 16 मतलब which date? First date or last date? फर्स्ट डे. तो फर्नीचर बिगिनिंग में था 2,600 का. ओके. At the end of the year after depreciation the furniture value was 2,700. ओके. तो ये फर्नीचर कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा 2,600 से. अब बोल रहा है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन ये 2,700. ऐसा कैसे? डेप्रिसिएशन दिया होगा, परचेज होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना है उस पे? 300. तो कुछ माइनस 300 ये मिला तो 3,000 का हुआ होगा. तो प्लस परचेज हुआ होगा कितने का? 400 का परचेज हुआ होगा. ये समझ आ रही है बात ऑल ऑफ यू? डेप्रिसिएशन 300 दिया है बराबर. आउटर कॉलम 2,700 है, मतलब प्री डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्री 3,000 का होना चाहिए. लेकिन आया तो था 2,600 का, 2,600 का आया था. 3,000 कैसे बना? 400 रुपया ऐड हो गया उस परचेज का. अब अगर आपने परचेज किया है इस साल तो कहाँ दिखना चाहिए?
पेमेंट्स में पेमेंट साइड में दिखना चाहिए, पेमेंट साइड पे दिखना चाहिए। बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है 400, ये दिखना चाहिए पेमेंट साइड पे। अग्री? Then club has raised a bank loan of 5,000. Of these, half the loan was repaid during 2016. Had raised, अब लास्ट ईयर लोन था, ने का था लोन 5,000 का, तो लाइबिलिटी लास्ट ईयर लाइबिलिटी में आया होगा लोन 5,000 में से आधा ये साल रीपे किया है, आधा ये साल रीपे किया है, तो आधा जो रीपेड है वो पेमेंट में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। हेलो? तो बाय लोन रीपेड, कितना रीपे किया हमने? आधा 2,500, करेक्ट? बाय लोन रीपेड दिखना चाहिए। और करंट ईयर बैलेंस शीट में लोन कितना आएगा? अभी लोन 5,000 लेस रीपेड हो गया 2,500, तो कितना हो गया अभी? ये 2,500 हो गया। समझ आई बात? और क्या है, बस हो गया। चलो तो फिर पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज मिसिंग, राइट? ओपनिंग कैश बैलेंस इज मिसिंग, तो अपने पास रास्ता नहीं है, अपने को पहले कैपिटल फंड भी नहीं दिया है, कैपिटल फंड दिया है नहीं दिया, तो हाउ टू प्रोसीड नाउ, हाउ टू फाइंड आउट वेदर योर सम इज राइट रॉन्ग, हाउ टू फाइंड आउट? पहले ओपनिंग बैलेंस ढूंढने का ना, पहले ओपनिंग बैलेंस ढूंढने का। चलो पहले ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेते हैं रिसीट पेमेंट से। बताओ ओपनिंग बैलेंस ढूंढो। सॉरी 4,990. 4,990, हाँ 4,990 is the opening balance, right? 4,990 is the opening balance. All of you got that? पहला क्रेडिट माइनस डेबिट, ओके? टोटल बोलो मेरे को, व्हाट इज द रिसीट पेमेंट का टोटल? 14,160. 14,160। नाउ ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 4,990। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस? कैपिटल फंड मिसिंग था सम में, तो यू अराइव एट योर कैपिटल फंड, राइट? 32940। 32940. 32940। अब ये 32940 आपको लेके जाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में 32940। इसमें सरप्लस और डेफिसिट भी आपके प्रॉब्लम में देख लो। आई थिंक इट वाज सरप्लस ऑफ 600, ये ऐड करना भूलना मत। ऐड सरप्लस ऑफ 600, so you arrive at 33,540 and now it should tally on सर आपने कैश बैलेंस नहीं करंट ईयर क्लोजिंग लिखा ना? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, अच्छा 2,600 रिसीट में लिखा है, यहाँ पे रहेगा। करंट ईयर क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एंड इट शुड टैली, या टैलीज 36660. 3,660 ये था पूरा पिक्चर। बोलो एनी डाउट? पूरा बैठा दिमाग में? रिसीट पेमेंट बनाने का है, ठीक है? आउट ऑफ द गिवन डेटा हाउ टू प्रोसीड। सर होमवर्क का सम ढूंढ रहे हो? नहीं अभी एक और। थैंक यू, आज एकदम टाइम पे लेक्चर एंड कर रहे हो। 120 हो रहा है, लेक्चर एंड हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो लास्ट सम फॉर द डे 42। सर बस छोटा है, नॉर्मल सम है, कम ऑन। 42 सम नंबर 42। हिमांगी को बस नहीं होना चाहिए, हिमांगी तो राजधानी, हिमांगी तो हो गया रहेगा। बोला मैंने 42 तो आधा सम खत्म उसका हो गया। चलो सम नंबर 42। आर्यन भानुशाली, आबा जटाकिया, ईशा गुंडलिया, कम ऑन वीडियोस ऑन रखो। ये तो रेगुलर सम है। Regular sum, but only thing is subscription. Subscription is very important.
to tackle subscription. Normal sum है, income and expenditure and current year balance sheet. Draw कर लो. Discussing. चेक कर लो. 42. सर हम लोग खुद कर रहे हो खुद से? पूरा? यस. 4 सब्सक्रिप्शन है. 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 और 2 लास्ट ईयर के एसेट में. सर वो चलेगा पर सबका अमाउंट बताओ ना, इधर सब ऊपर नीचे है. क्या ऊपर नीचे है? बराबर तो है सब. इसमें जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट है इसमें 7, 8 का 1800 है ना, और 8, 9 का 2500. हाँ. और ये रिसीट पेमेंट में क्या है? रिसीट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन 7, 8 का है 1800. हाँ. 8, 9 का है 2000. हाँ बस. 9, 10 का है 65,000. वो है ही नहीं. क्या है 9, 10 का? 9, 10 का 65,000. हाँ. और 10, 11 का 1000. ऐसा कैसा नहीं है? 10, 11 का कितना? 1000. और ऊपर लाइबिलिटी साइड पे भी है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 10, 11 1100. हेलो है क्या? खाली इसके अंदर मिसप्रिंट है, सबके पास है ना? हाँ है. हाँ. और एक है किधर तो सब्सक्रिप्शन. ओके. उसके नीचे का है आइटम्स नंबर डोनेशन, एंटरटेनमेंट रिसीट्स और एंट्रेंस फीस. नहीं है सर, मैं इसमें से नहीं कर रहा, अभी फोन में से ही कर रहा हूँ. पीडीएफ में कट हो गया लगता है. हाँ फोन में से कर. हाँ. इसमें मेन सब्सक्रिप्शन है, बाकी तो सब नॉर्मल है सब. कर लो डिस्कस फटाफट सब्सक्रिप्शन, बाकी करते जाओ. चलो करोगे खुद से पूरा सब्सक्रिप्शन भी? पक्का? सर वो डोनेशन, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट और एंट्रेंस फीस की अमाउंट क्या है? डोनेशन इज 11,000, एंटरटेनमेंट रिसीट इज 8,800 and entrance fees are 2,000. ओके. सब्सक्रिप्शन एकदम ध्यान से करना, दिमाग लगा के. सर और एक मिनट. और एक एडजस्टमेंट नंबर 4 में भी है सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 9, 10 is 1,500. ओके. चलो बोलो. जेनिल यस. सर जो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है 10, 11 का, तो दोनों ऐड करना है ना, 1100 और 1000. Yes, in the current year balance sheet. Okay. Perfect. चलो so I'm not solving. 1100 और रिटायर कर दिया तुमने मेरे को. हाँ क्या बोल रहे हो? this year outstanding में 1500 है, वो 1000 बोला ना जेनी. This year outstanding वो तो नीचे एडजस्टमेंट में है. 1,500. 1,500. यस. करो चलो फटाफट. ये अपना ईयर 9, 10 ना. हाँ ईयर बराबर है. करंट ईयर इज 9, 10. यस करंट ईयर इज 9, 10. एंट्रेंस फीस 2000 है ना. एंट्रेंस फीस का अमाउंट इज 2,000. यस एंट्रेंस फीस का अमाउंट इज 2,000. ऐसा कैसा अमाउंट पूछ रहे हो तुम लोग? दिख रहा है नहीं है उधर? है ना? दिख रहा है? थोड़ा ऊपर नीचे. अरे अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया क्या? अरे बाप रे. पिक खींच के मैं भेजता हूँ जरा फटाक से ग्रुप में, देख लो. यही सब में ऐसा लफड़ा हो गया. ऐसा कैसा हो गया? ये एनएम के प्रीलियम का पेपर है.
ग्रुप में डाला है, देख लो जरा फटाफट से। इमेज डाला है ग्रुप में, चेक कर लो। करंट ईयर इज 9-10, लास्ट ईयर वाज 8-9। वन लैख 63,000 पे कौन था ये? व्यक्ति हाँ सर 1,63,000। हाँ वाह। लेट्स सी। सर सब्सक्रिप्शन का आउटर कॉलम 66,000 आ रहा है। एक ही सेकंड, अभी मैं वही कर रहा हूँ। देख लेना। Coming to subscription only, balance subscription. नहीं, क्या बोला? आई थिंक मिस्टेक है। 66,500 आ रहा है। 66,500 ही आ रहा है। 66,500 टैली अमाउंट क्या था? टैली अमाउंट 163,000। 160 थी ना? मिला तुमको भी? हाँ वेरी गुड। सर 892,000 दिया है, मतलब वो रिसीव पेमेंट में। हाँ 500 आउटस्टैंडिंग 2,500 दिया है ना। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? 500 500 स्टिल इन अरियर्स हुआ ना? तो वो एसेट में तो आएगा, तो लेस नहीं होगा? लेस क्यों नहीं होगा? ईयर वाइज है, अरे हाँ, ईयर वाइज दिया है, इसके अंदर नहीं पड़ा है। वो 2000 ही मिला है तुमको, मिलना बाकी है, वो 500 मिला ही नहीं है तुमको। 2000 अगर लेस करना होता ना तो ये 2000 लेस होता जो रिसीव किया तुम। वो कब लेस करते हैं? इसके अंदर इंक्लूडेड होता तब। इंक्लूडेड है ही नहीं तो माइनस करने की जरूरत नहीं। ओके 500 तो मिलना बाकी है, लास्ट ईयर एसेट और करंट ईयर एसेट। लेस करना होता तो 2000 लेस होता जो रिसीव किया है वो। डोनेशंस बिल्डिंग फंड का है। हाँ बिल्डिंग फंड का है।
entertainment receipts. This to be capitalized. आ रहा है surplus और deficit. Total पहले बोलो. Total is 75,300. Total आ रहा है 75,300. हाँ 27650. 27610. 650. Figures check कर लो. 27650. और tally total 95650. 95650 and tally is on 1,63,000. सब्सक्रिप्शन क्लियर है, सबको समझा? लास्ट टू लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस. नेक्स्ट लास्ट ईयर तुमको इस साल का नहीं नेक्स्ट ईयर का मिला था. ओके तो दोनों मिलकर लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा. 10-11 का 2 प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन था और लास्ट टू लास्ट ईयर का जो था 7-8 का वो आपको ये साल मिल गया. तो उसमें से कुछ भी स्टिल इन अरियर्स नहीं है, लेकिन 8-9 में से 500 इज स्टिल इन अरियर्स, सो दैट विल गो टू करंट ईयर्स एसेट. और 9-10 का तो करंट ईयर 1500 दिया है अलग से और 10-11 का नीचे हमने ऐड कर दिया. Sir, Yeah. can you explain how did you get that pre-received subscription 2100? प्री रिसीव्ड सी ऊपर वाले बैलेंस शीट में क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 10-11. नाउ वो करंट ईयर इज 9-10 और तुमको लास्ट ईयर में इस साल का नहीं नेक्स्ट ईयर का मिला है. In the previous year, you received the subscription for not this year, next year. So that was a liability for last year. Also, that will be a liability for this year also.
इट विल बी एन इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर। 10-11 में वो इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट ईयर का जो 1100 है वो तो दिखेगा ही करंट ईयर लाइबिलिटी में, और करंट ईयर में भी नेक्स्ट ईयर का एडवांस आया, देखो 10-11 का 1000। सो टोटल प्री रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर इज 2100। इट्स लाइक अ क्रेडिटर। लास्ट ईयर देयर वाज क्रेडिटर ऑफ 1100, दिस ईयर देयर इज एडिशनल क्रेडिटर ऑफ 1000, दोनों मिलके अभी 2100 का क्रेडिटर नेक्स्ट ईयर के इनकम में वो ऐड होगा। दैट वे। Clear with this? Any doubts? आज के सब सम तगड़े थे, रिवाइज करना बराबर से। ओके, होमवर्क मैं आपको एक और तगड़ा सम दे रहा हूँ, सम नंबर 43। 43rd सम आपका होमवर्क है, ठीक है। एक सम होमवर्क है, उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट दिया, डबल बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। और कुछ डाउट्स है तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज कल मिलते हैं। और होमवर्क भेजना है ध्यान से 9 बजे से पहले, ओके। और हिमांगी 9 बजे भेजना है। चलो बाय। कौन सा सम बोला होमवर्क? होमवर्क है सम नंबर 43। 43rd सम इज फॉर होमवर्क। आज का रिवाइज करना और फिर करना, अदरवाइज लीव। टाटा बाय बाय।